فصل فی معرفت التماثل والتداخل والتوافق والتباین بین العددین. یہ فصل ہیں تماثل، تداخل، توافق، تباین عددین کے درمیان نسبت کا پہچاننا کہ دو عددوں کے درمیان نسبت کس کا ہے، تماثل کا ہے یا تداخل کا ہے یا توافق کا ہے یا تباین کا ہے. اور یہ تصحیح کے باب کے لیے بطور تمہید ہے. تصحیح کہتے ہیں کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ترکہ تقسیم ہوتا ہے اس ترکے میں کسر سے بچا جائے، اور اس بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ تصحیح کے ذریعے مسئلہ حل کرے. تو پھر کسر سے کیا ہے، اور تصحیح کے لیے کیا ہے، عددوں کے درمیان نسبتوں کا پہچاننا ضروری ہے. تو آج ہم ان عددوں کے درمیان جو نسبت ہیں ان نسبتوں کو پہچانیں گے کہ وہ نسبتیں کون کون سی ہیں، کتنی ہیں. پہلے تو آپ عدد کی تعریف سن لیجئے. عدد کی دو تعریفیں ہیں. عدد اس کو کہتے ہیں جو اکائیوں سے بنا ہو، جس طرح کہ دو. اب دو کیا ہیں، دو ایک سے بنا ہوا ہے. ایک اور ایک کو جمع کرو تو کیا بن جائے گا، دو. تو جو عدد اکائیوں سے بنا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، عدد کہتے ہیں. اب ایک عدد نہیں ہے کیونکہ وہ صرف ایک اکائی ہے. ایک عدد نہیں ہے کیونکہ وہ صرف کیا ہے، ایک اکائی. اور عدد کس کو کہتے ہیں، جو اکائیوں سے بنا ہو. کس سے بنا ہو، اکائیوں سے. اور دوسری تعریف عدد کی کیا ہے کہ طرفین کے مجموعے کا کیا ہو، نصف ہو. طرفین کے مجموعے کا نصف ہو. اب دو کو دیکھو، ایک اور تین یہ اطراف قریبہ ہیں اس کے. یہ کیا ہے، اطراف قریبہ. ایک سائڈ پہ ہیں دو کا، اور تین کیا ہیں، دوسرے. ان دونوں طرف ہیں. اب ان دونوں کو جمع کرو، چار ہو جائے گا. تو دو اس کا نصف ہے کہ نہیں ہے. تو عدد اس کو بھی کہتے ہیں کہ اپنے طرفین کا کیا ہو، نصف ہو. تو یہ بھی کیا ہے، عدد ہے. سمجھ آ گیا بھائی. یا اطراف بعیدہ لے لو، جس طرح کہ 3 5 کا کیا ہے، طرف بعید ہے. اسی طرح 7 جو ہیں یہ کیا ہے، طرف بعید ہے. تو 3 اور 7 جمع کرو کتنے ہو جائیں گے، 10. تو 5 10 کا کیا ہے، نصف ہے، آدھا ہے. سمجھ آ گیا کہ جو اطراف قریبہ کا نصف بنے، اطراف قریبہ کے مجموعے کا نصف بنے یا اطراف بعیدہ کے مجموعے کا نصف بنے تو اس کو کیا کہتے ہیں، عدد کہتے ہیں. یہ تو عدد کی تعریف ہو گئی. اب پہلے نمبر پر ہے تماثل. تماثل کہتے ہیں برابری کو، کہ دو عددوں کا آپس میں کیا ہونا، مساوی ہونا، برابر ہونا. جس طرح کہ 3 قلم ہیں اور 3 کیا ہیں، کتابیں ہیں. 3 قلم 3 کتابیں، یہ تو معدود ہے نا دونوں. اور یہ کیا ہے، عدد ہیں. یہ کیا ہے، عدد ہے. تو یہ 3 اور 3 آپس میں برابر ہے کہ نہیں ہے، 3 اور 3 آپس میں برابر ہیں. تو ان دونوں عددوں کے درمیان نسبت کیا ہے، تماثل کا ہے. عددین متماثلین، عددین متماثلین. تو ان دونوں عددوں کے درمیان نسبت کون سا ہے، تماثل کا ہے. کس کا نسبت ہے، تماثل کا. برابری کو تماثل کہتے ہیں. دوسرے نمبر پر تداخل ہے. کیا ہے، تداخل کہ دو عددوں کے درمیان نسبت کس کا ہونا، تداخل کا ہونا. تداخل کی کئی تعریفیں ہیں. ایک یہ ہے کہ چھوٹا عدد بڑے عدد کو فنا کر دے. چھوٹا عدد بڑے عدد کو فنا کر دے. چھوٹا عدد بڑے عدد کو فنا کر دے. اب دیکھو 8 اور 4. 8 سے کیا کرو، 4 مائنس کرو، کتنا بچ جائے گا، 4. 1 اور 4 مائنس کرو، کیا بچ جائے گا، 0. تو اس 4 نے کیا کر دیا، 8 کو فنا کر دیا. کہ اقل عدد کیا کرے، اکثر کو فنا کر دے. تو ان دونوں کے درمیان نسبت کیا ہوگا، تداخل کا ہوگا. عددین متداخلین، عددین متداخلین. دوسری کیا ہے کہ اقل جو ہیں اکثر
यानी अकल का मिसल या अमसाल मिला के तो अक्सर के क्या हो जाता है, मसावी हो जाता है। अकल के साथ उसका मिसल या कई अमसाल मिलाकर क्या हो जाए, अदद अक्सर का क्या हो जाए, बराबर हो जाए। देखो भाई 4 के साथ दूसरा 4, यानी इसका मिसल है ना, बराबर है, ये मिलाओ तो कितना हो जाएगा, 8। दोनों बराबर हो गए कि नहीं? तो इसको क्या कहते हैं, अददैन मुतदाखिलैन। इन दोनों के दरमियान निस्बत किसका है, तदाखुल का है। और एक ये है कि अदद अकल अदद अक्सर को पूरा पूरा तकसीम कर दे। अदद अकल अदद अक्सर को क्या कर दे, पूरा पूरा। अब देखो 4 दूने 8 मुकम्मल क्या कर दिया, तकसीम कर दिया। समझ आ गया भाई? उस्ताद जी, हाँ सर जी ये जब फना करेगा तो निस्फ यानी कि फना करेगा, यानी 4 है ना, तो 4 को 8 और 4 और 4 तक माइनस करते जाओ छोटा अददों किससे, बड़े से, यहाँ तक कि वो क्या ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। अब आप 4 जो है अकल है और ये क्या है, अक्सर है। 4 आपने एक मरतबा माइनस किया, कितना रह गया, 4 है। फिर दोबारा माइनस किया, कितना रह गया, फना कर दिया कि नहीं? तो अदद अकल जो है अदद अक्सर को क्या कर दे, फना कर दे, काट दे। तो इन दोनों के दरमियान क्या होगा, तदाखुल होगा। दूसरा क्या बताया कि अदद अकल के साथ उसका हम मिसल अदद मिलाते जाओ या कई मिसल मिलाओ कि किसके बराबर हो जाए, अदद अक्सर के। अब 4 है, 4 का दूसरा मिसल क्या है, 4। तो जब ये मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो बराबर हो गया कि नहीं अदद अक्सर के? ये है कि अदद अकल जो है अदद अक्सर को क्या कर दे, वो पूरा पूरा तकसीम कर दे, इन्हें सही तरीके से क्या कर दे, तकसीम कर दे। तो इन दोनों के दरमियान क्या होगा, तदाखुल। एक ये है कि अदद अकल अदद अक्सर का जुज़ हो, अदद अकल अदद अक्सर का क्या हो, या तो निसफ होगा या सुलस होगा या रुब होगा। अब 4 जो है ये 8 के लिए क्या है, निसफ है, जुज़ है कि नहीं है? समझ आ गए? इसको तदाखुल कहते हैं। जरा ये देखो, फिर आगे तवाफुक पढ़ते हैं। फस्लुन फी मारिफति तमासुल व तदाखुल व तवाफुक व तबायुन। ये फसल है तमासुल, तदाखुल, तवाफुक, तबायुन बैनल आददैन, आददैन के दरमियान निस्बत पहचानने में। तमासुल किसको कहते हैं, तमासुल आददैन कौन अहदिहिमा मुसावियन लिल आखर। 2 आददों का क्या होना, मसावी होना। कौन अहदिहिमा, इनमें से एक अदद का दूसरे अदद के साथ बराबर होना। जिस तरह के 3 3 दोनों आपस में क्या है, बराबर। 4 4 बराबर है। तो इन दोनों के दरमियान क्या है, तमासुल, निस्बत तमासुल है। व तदाखुल आददैन मुख्तलिफैन, और 2 मुख्तलिफ आददों के दरमियान निस्बत तदाखुल। अन यउद्दा अक़ल्लुहुमल अक्सर, कि छोटा अदद क्या करे, बड़े को फना कर दे या शुमार कर दे। आई युफनी है कि बड़े अदद को क्या कर दे, फना कर दे, यानी काट दे। बता दिया ना किस तरह काटते हैं, कि अदद अकल क्या करो, ये माइनस करते जाओ अदद अक्सर से, तो क्या हो जाएगा, बड़ा अदद फना हो जाए। औ नक़ूलो, या हम कहते हैं हुआ अन यकून अक्सरुल अददैन मुनक़सिमन अलल अक़ल क़िस्मतन से, कि वो अक्सर अदद जो हैं वो अकल पर क्या हो, सही सही तकसीम हो जाए। 4 को क्या करना, यानी 8 को 4 पर तकसीम करो तो 8 क्या हो जाएगा, सही सही तकसीम हो जाएगा। तो इन दोनों के दरमियान क्या है, निस्बत तदाखुल कहें 4 और 8 के दरमियान। और नक़ूल, या हम कहेंगे हुआ अन यज़ीदा अलल अक़ल मिस्लु, ये कि ज़्यादा करे अकल पर, मिस्लुहु उसका मिसल, और अमसालु या कई मिसल। यानी 4 हैं, 4 पर क्या करो, यानी दूसरा 4 क्या कर दो, उसका मिसल ज़्यादा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अदद अक्सर का। फ़युसाविल अक्सर, तो ये क्या हो जाएगा, अक्सर के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों अददों के दरमियान क्या है, अदद मुतदाखिलैन, निस्बत तदाखुल का है। और नक़ूल, या हम कहेंगे हुआ यकूनल अक़ल्लु जुज़अन लिल अक्सर, कि अदद अकल जुज़ो किसके लिए, अदद अक्सर के लिए। मिस्लो सलासतुन व तिसातुन, 3 और 9। अब 3 जो हैं ये जुज़ हैं कि नहीं है 9 का,
एक तिहाई है 9 का, क्या है? एक तिहाई। तिहाई है। तिहाई है कि नहीं है? 3 को 3 मरतबा जमा करो तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 3 एक तिहाई हुआ किसका? 9 का। तो सही है। ये जुज है कि नहीं है? ये शर्त है कि रुबा तक हो या जितना मर्जी सुदस से उसका हो, उसका सुमन हो। क्या मतलब सुमन? मतलब 24 है, हाँ अब 4 उसका सुमन है, हाँ तो ये भी तदाखुल ही है। हाँ, ये जो तारीफ़ें किए हैं ये तारीफ़ें साबित हो जाए तो तदाखुल है। व तवाफ़ुकुल अददैन अल्ला यउद्दा अक़ल्लहुमुल अक्सर, और तवाफ़ुक अददैन क्या है? 2 आदतों के दरमियान जो तवाफ़ुक का निस्बत है कि अकल जो है अक्सर को फ़ना ना करे, अकल जो है अक्सर को फ़ना ना करे। देखो भाई 8 हैं और 20 हैं, अब 8 के साथ दूसरा 8 जमा करो तो कितना हो जाएगा? 16। तीसरा जमा करो तो कितना हो जाएगा? 20 को फना कर दिया? नहीं कर दिया। या 8 क्या करो? माइनस करो, कितना हो जाएगा? 12। फिर 8 माइनस करो, कितना रह जाएगा? 4। फना नहीं करता ना, ठीक है। हाँ, कोई और आदत जो दोनों को क्या करे? फना कर दे। 4 हैं, 4 ने क्या कर दिया? 8 को फना कर दिया और 20 को भी फना कर दिया। समझ आ गया भाई? तो इसको क्या कहते हैं? तवाफुक कहते हैं बैनल आददैन। क्या कहते हैं? कि आदद अकल आदद अक्सर को फना नहीं करता, लेकिन कोई तीसरा आदत दोनों को क्या करता है? फना करता है। तो इसको क्या कहते हैं? तवाफुक बैनल आददैन। समझ आ गया भाई? और जो आदत इनको फना करता है इसको आदद आद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदद आद। आदद आद क्या कहते हैं? और आद आजम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आद आजम। क्या कहते हैं? आद आजम। आद आजम पढ़ा है कि नहीं कहीं? हाँ, तो आद आजम भी कहते हैं और आदद आद भी कहते हैं। और इसी 4 को क्या कहते हैं? तवाफुक बिर्रुबा। क्या कहते हैं? तवाफुक बिर्रुबा। तवाफुक कि दोनों का मुवाफिकत किस पर है? रुबा पर। के दोनों 4 पर क्या होते हैं? तकसीम होते हैं, फना होते हैं। 4 दूने 8, तो ये वफक हुआ किसका? 2 वफक है किसका? 8 का। 5 वफक है किसका? 20 का। समझ आ गया भाई? व तवाफुकुल अददैन, और 2 आदतों के दरमियान निस्बत तवाफुक अल्ला यउद्द अक़ल्लहुमुल अक्सर, के छोटा आदत इन दोनों में से छोटा आदत अक्सर को फना न करे, शुमार न करे। वलाकि यउद्दहुमा आदतुन सालिसुन, लेकिन कोई तीसरा आदत इन दोनों को क्या कर दे? फना कर दे। कसमानियति मअल 20, जिस तरह के 20 किसके साथ हो? 8 20 के साथ हो। तउद्दुहुमा अरबातुन, तो इन दोनों को फना करते हैं क्या? 4। फ़हुमा मुतवाफ़िक़ान बिर्रुबा, तो ये दोनों क्या हैं? मुतवाफ़िक़ हैं किस पर? रुबा। तो इसको तवाफ़ुक बिर्रुबा कहते हैं। किस क्या कहते हैं? और इर्रुबा को क्या कहते हैं? दूसरा आदद आद और आद आज़म। लिअन्नल आदद आदा लहुमा मखरजुन लिजुज़इल वाफ़िक़, क्योंकि आदद आद जो हैं इन दोनों के मखरज, दोनों का क्या है? इन दोनों का आदद आद मखरजुल लिजुज़इल वाफ़िक़, ये मखरज है किसका? वाफ़िक़ के जुज़ के। ये इबारत बनता नहीं, यहाँ पे इबारत नहीं बनता, क्योंकि 4 2 का ये मसला तो नहीं है ना। जब 2 आ जाए तो मसला 4 से बनता है, जब 5 आए तो मसला 4 से बनता है। लेकिन यहाँ पर तो ये कहता है लिअन्ना आददल आद लहुमा, कि आदद आद जो है इन दोनों का, आदद आद क्या है? वो तो 4 है ना। मखरजुन वो क्या है? मखरज है, मसला है। लिजुज़इल वाफ़िक़, किसके लिए? वाफ़िक़ के जो, और वाफ़िक़ का जुज़ क्या है? 2 है, 5 है। तो इसको ज़रा ये समझो कि 2 ये 8 को कितने में तकसीम करता है? 4। तो 2 का 8 के साथ निस्बत क्या है? रुबा है ना। 2 का 8 के साथ निस्बत क्या है? रुबो है। कि 2 8 का रुबो है और 5 20 का कितना है? रुबो। तो ये जो आदद आद हैं ये रुबो हैं किसका?
मखरज है किसका? इसके रुबे का। अच्छा, 4 भी तो रुबो है, हाँ 4 भी तो 20 का रुबो है। किस तरह रुबा है? वो खुमसे है। 4 पंजे 20। समझ आ गया यस सर। कि जो अदद आद है ये मखरज होगा किसका? यानी 8 के जो रुबो हैं, 8 का जो रुबा है वो 2 है। इसी तरह ये मखरज होगा 20 का जो रुबो है जो 5, उसका के लिए क्या होगा? इन्हीं मखरज होगा। समझा? वरना अगर आप ज़ाहिरी तौर पर इबारत देखे तो इबारत नहीं बनता। ज़ाहिरी तौर पर इबारत देखे तो इबारत नहीं बनता। देखो भाई, लिअन्नल आददल आदा लहुमा मखरजुल लिजुज़, क्योंकि आदद आद जो हैं लहुमा इन दोनों का मखरजुन, ये मखरज है, ये मसला है लिजुज़िल वफ़क़ की, किसके लिए? जुज़े वफ़क़ का। वो जुज़े वफ़क़ क्या है? रुबो है। जुज़े वफ़क़ क्या है? रुबो के 2 8 का क्या है? रुबो है कि नहीं है? 5 20 का क्या है? रुबो है। तो ये उस रुबो के लिए क्या है? मसला है कि जब रुबो आ जाए मसले में तो मसला किस से बनता है? 4 से बनता है। समझ आ गया? तबानुल अदद ये ज़रूरी है समझना। अगर नहीं समझोगे तस्कीर बिल्कुल समझ नहीं आएगी आप लोगों को।